session is going to discuss how the face of the Bollywood villain has changed as India has changed. And to discuss this, we have none other than Bollywood baddie Raza Murad, author Balaji Vittal. And to discuss this with them is author and journalist Sathya Saran. Please. Good evening. Hello. I know it's been a long day, but now we are going into a very dark place. Darker than the night outside. Full of villains, all kinds of baddies. One is sitting right here. The good thing about them is that they're only on paper. And they're not going to hurt us. But we shall learn about how they think, what they did, and why they did what they did. On screen, of course. Most of the baddies were good men, included. So, so let's take this forward. I'm going to start with talking about the book, and then we'll go into real life. Pure Evil, the Bad Men of Bollywood. And Sriram Raghavan says, here you will meet a range of thugs and femme fatales. Be warned. So, Balaji, I want to ask you, why baddies? I mean, everybody writes on heroes and heroines. Why baddies? Are they role models? Well, the first three books of mine were all about the good men. R.D. Burman, S.D. Burman, Gata Rahe Mera Dil. So I said, why not do something different? Let's go the other end of the spectrum. But the bigger reason was that HarperCollins and Shantanu Rai Chaudhuri gave me the idea. Why don't you write a book on the villains of Bollywood? And I think somewhere it clicked because there had not been an authentic book on Bollywood villainy thus far. And I grabbed the idea. It was something different. And something different is something good. That's where it started. And tell us about the research. I mean, this book is extensively researched. You have named at least 1,000 films. And I think equal number of baddies playing roles. So how did you research it? How long did it take? Cumulative, about, with breaks in between, of course. Took about 6 years. The journey was about 6 years. Watched about 300 plus films. Interviewed more than 50 Bollywood personalities. Read up a whole lot of biographies. Went to Daryaganj in Delhi and pulled out a whole lot of magazines. Sat on the floor out there and, those news vendors. And dug up a whole lot of archival material. That's how the journey was. And but then it was a different thing altogether, putting the whole thing into a story. Where was the story? Okay, I've maybe interviewed all the people, but what is the core story? And that took a while coming because I couldn't figure that out. It took a long time. The structure. The structure. What is it going to be? We'll come to that later. Raza Murad Sahab. Shagun? I have... Hargun, sorry. Your favorite role, where I am concerned, is in Namak Haram, where you sing that beautiful song, Main Shair Badnaam, right? And I was a little upset when you became a baddie. I said you should have remained a poet. But tell me, what made you delve into the nether regions? A very, very good evening to all of you. बड़ी कलरफुल गैदरिंग है, बड़े खूबसूरत चेहरे हैं. इक्का दुक्का चेहरा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरे एक साथ बहुत कम देखने को मिलते. तो आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा मैडम कि मैं बुरा था नहीं, बुरा बना दिया गया. और इसकी भी एक कहानी है. राज कपूर साहब ने जिस फिल्म का आपने जिक्र किया वो उन्होंने देखी थी, नमक हराम. और मेरी औकात नहीं थी कभी उन तक पहुंचने की. तो एक दिन मैं रणधीर कपूर के साथ शूटिंग कर रहा था. एक मेरी फिल्म थी राम भरोसे. मैंने कहा डब्बू
do me a favor. Please get me introduced to your Papa Raj Kapoor. Why do you want to meet Raj Kapoor? I said I would love to meet him. You know, the kind of films which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. तो साहब वहीं हमारा पता कट गया. Anyway, वक्त गुजरता रहा और 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, उन्होंने 3:30 बजे अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया और कहा कि ऋषिकेश ने मजदूरों की प्रॉब्लम पर एक फिल्म बनाई थी जिसमें एक शायर था, लंबा सा भारी सी आवाज वाला, क्या नाम है उसका? He said कि रजा मुराद नाम है और आप उनके पिताजी मुराद साहब के साथ, अच्छा उनके बेटे हैं, उन्हें बुलाइए. तो इट वॉज क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है जब मेरे पास ये मैसेज आया कि राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया है. I went to meet him and he was so respectful. रजा साहब, हमारी जहन में सिर्फ इस किरदार के लिए आप हैं, आपके अलावा हमने किसी को नहीं सोचा है जी. आप मना करेंगे तो शायद फिर किसी और के बारे में सोचें, सिर्फ आप ही हैं. एंड आई वॉज वंडरिंग कि मैंने विलन के रूल्स किए नहीं. फिर उन्होंने मुझे नरेशन दिया रोल का. ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ऑफ सुमेरगंज, और कहां वो टूटा फूटा नमक हराम का गंदी बस्तियों में रहने वाला जिंदगी से मायूस शायर, और कहां ये सुमेरगंज का राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह. तो खुश होने के बजाय मैं डर गया. मैंने सोचा कि ये कुछ मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. राज कपूर की फिल्म में मेन विलन का रोल दे रहे हैं, तो जो इनकी एक्सपेक्टेशन है उस पे मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं खरा उतर पाऊंगा. तो खुशी से ज्यादा मुझे डर लगा. एंड देन ऑफ कोर्स मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन हूं. तो हॉकी में यहां पंजाब की भी काफी ऑडियंस है, जानते होंगे कि पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है. मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा रजा मुराद, तेरी जिंदगी में ये पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और इसे तो गोल में कन्वर्ट होना ही चाहिए किसी भी हालत में. एंड देन आई गिव माई 100%. एंड ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट. और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, या शायद कोई भी ना जानता हो आप में से, कि हर शॉट के वो 2 टेक लेते थे, 2 ओके टेक लेते थे. एक लैब में जाता था और एक उनके पास रहता था. उन्होंने कहा कि मेरे कुछ फिल्मों के नेगेटिव्स जल गए थे लैब में, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एक नेगेटिव मैं अपने पास भी रखता हूं कि अगर कभी कोई हादसा पेश आया तो मेरे पास मेरा मटेरियल होना चाहिए. और बात सिर्फ उन्होंने कहा पैसे की नहीं है, ये इसमें हमारा खून पसीना, हमारी मेहनत लगती है. तो हर शॉट के 2 टेक होते थे. और एक शॉट एक ऐसा हुआ कि पद्मनी कोल्हापुरी को मैं पकड़ता हूं और उसकी साड़ी में खींचता हूं, वो गिरती है और गिरने के बाद उस साड़ी को मैं फेंकता हूं. तो वो इतना अच्छा शॉट हुआ, कहने लगे रजा साहब ये जिंदगी का पहला शॉट है जो मैं दोबारा नहीं ले सकता. ये तो वो एक ही टेक उसका रखा गया, दोबारा नहीं लिया. उसमें ये भी रिस्क था कि उसे चोट लग सकती है. बच्ची थी तब वो 16 साल की थी. इस तरीके से हमारी बुराई की दुकान शुरू हुई. और मैं ये कहूंगा कि जब फिल्म का पहला प्रिंट आया, उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया. जब प्रोजेक्शन खत्म हुआ तो मुझे उन्होंने अपने साथ खड़ा किया और कहा रजा साहब
बहुत से हमारे यहाँ दोस्त हैं जो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। जब हमने आपका नाम लिया तो सबने आपकी मुखालिफत की। हमारे तीनों बेटों ने भी कीजिए, इन्होंने भी की, पूछिए इनसे आप। खैर, हमने यही कहा साहब हमारी आंख है, ये रोल तो रजा साहब करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि कई बार तकदीर, प्रोविडेंस, लक आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जब दस्तक देती है, जब एक अपॉर्चुनिटी गोल्डन आ रही है, तो फिर उसको मिस नहीं करना चाहिए। आप 100% दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो ऐसा ही हुआ। फिर फौरन उन्होंने राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत कर दी। उसमें भी उन्होंने हमें मेन विलन का रोल दिया, और इस तरीके से जो बैक टू बैक 2 फिल्में उनके साथ हमने की, दोनों फिल्में चली, तो फिर वहां से बुराई की दुकान जो है परवान चढ़ी और आज तक चल रही है। पर आपने तो बहुत सारे रोल्स किए हैं, डकैत का रोल किया है और फिर पॉलिटिशियन का रोल किया है, जी, सब जी। विलेनस, इंटायरली विलेनस। तो ये हर एक रोल को आप अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब आप डकैत को स्टडी करते हैं, पॉलिटिशियन को स्टडी करते हैं? पॉलिटिशियंस को तो स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है। रोज आप अखबार पढ़ते हैं, रोज आप यूट्यूब देखते हैं, तो वो स्टडी जो है, वो जो स्टडिंग चैप्टर है, वो तो अपने आप हो जाता है। जहां तक डाकुओं का सवाल है, देखिए फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि डाकू जो है घोड़े पे सवार है और उसके माथे पर एक तिलक है और वो जय मां भवानी के नारे लगा रहा है, ये एक क्लीशेड एक रूप हो गया है डाकू का। हमने असली डाकू भी देखे हैं, आपको पता ही नहीं चल सकता कि ये डाकू हो सकते हैं। वो बेचारे बीहड़ों में छुपे रहते हैं। घोड़ा तो जाने दीजिए, कुत्ते भी उन्हें मयसर नहीं होते। अगर आप घोड़े पे जा रहे हैं तो एनी पुलिसमैन कैन शूट यू। एक घुड़सवार जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, यू कुड बी शॉट डेड। तो किसी डाकू के पास घोड़ा वोड़ा नहीं होता। अब ये एक इमेज बन गई है डाकू की कि उसके पगड़ी होगी, उसके तिलक होगा, उसके मूंछ होगी, और यहां पे साहब वो पट्टा लगा होगा कारतूसों का। तो ये इमेज बन गई है। और जहां तक रियलिटी का सवाल है, जो दिखाई गई है फिल्म बैंडिट क्वीन में, वो बहुत सही दर्शाया गया है। लेकिन अगर हम इस तरीके से दर्शाएंगे तो कोई हमें मानेगा ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं आप। अरे डाकुओं की तरह बोलो। अरे भाई डाकू भी तो इंसान है यार, वो भी इंसान है, वो भी आम लोगों की तरह हंसते बोलते हैं। कुछ शौक से डाकू बन गए हैं, कुछ हालात से बन गए हैं, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो क्या होता है कि जब हमारे पास डाकू का रोल आता है तो रियलिटी को हम जरा एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि हमें उसी क्लीशेड वे पे चलना है जिसपे सुनील दत्त साहब ने शुरुआत की थी मुझे जीने दो में। ठाकुर जरनैल सिंह का रोल किया था। अब साहब एक फिल्म में मेरा पहला दिन था, डाकू बना था, मैंने साफा वफा बांधा, तो शॉट होने वाला था, तो डायरेक्टर ने 1 मिनट तिलक कहाँ है आपके? मैंने कहा कि तिलक जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, आप डाकू लगोगे ही नहीं तिलक के बिना। तो वो एक इमेज बन गई है कि साहब डाकू है तो तिलक है ही है,
पगड़ी है ही है, आंखें लाल है ही है। तो उन्होंने हमें शॉट से पहले तिलक लगा दिया। फिल्मों के जो डाकू हैं उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ अच्छी फिल्में बनी हैं लेकिन उन फिल्मों की ऑडियंस उतनी नहीं है, या वो जो है आम मासेस के लिए जो हैं वो फिल्में नहीं बनी हैं। बट हम जो जिस डाकू को प्रोजेक्ट करते हैं वो बहुत ही अनरियल है, और आम जिंदगी में ऐसे डाकू नहीं होते, लेकिन हमें मजबूरी में उसी क्लीशेड रास्ते पर चलकर उन कैरेक्टर्स को इनेक्ट करना होता। Thank you. Politicians का तो अलग ही है. Anyway, we won't go there just now. Balaji, tell me, you approached the book finally as a structure by classifying the different kinds of villains. Do you want to share with the audience some of these classifications? Don't go through the whole book. We'll be here all evening. इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी. बालाजी की जो किताब है, इट्स एन एनसाइक्लोपीडिया। जो हमारी हिस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री की, आई वुड नॉट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, बट आई वुड लाइक टू सैल्यूट हिम। इन्होंने जो किताब लिखी है, जो रिसर्च इन्होंने की है, और इतनी माइन्यूट रिसर्च की है, सर हेड्स ऑफ टू यू। मैं बिल्कुल नमन करता हूं आपको। कितनी आपने उसमें पेन्स ली होंगी, कहां से आपने रिसर्च किया होगा, और कोई भी एक ऐसा पहलू नहीं है हमारे विलन्स का जिसका आपने जिक्र ना किया हो। बहुत से ऐसे बेचारे अननोन एक्टर्स भी हैं जो आज लोगों के जहनों से उतर गए हैं, उन तक का आपने इतना माइन्यूटली अपनी किताब में जिक्र किया है। आई थिंक एनीवन जिसे भी विलन्स के बारे में, उनकी जाती जिंदगी के बारे में, उनके किए हुए रोल्स के बारे में इंटरेस्ट है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड द बुक। Thank you, sir. I'm grateful to you for your feedback. About the classification, it was basically on two axes. One is the timeline, the decades, and the second is the various types. Because not all forms of villainy is visible in all the decades. So the broad classifications are basically your personal villains, like Vishwasghat, jo thakte hain, jo business rivals, your friends or cheating spouses, that's ek hain. Then things like foreigners as a villain, which starts with British and comes to Pakistanis, with Chinese, Hakikat ke baad Chinese, uske baad Pakistanis, all that. And then comes things like your dacoits and the zamindars, right? Then comes the politicians and the corrupt policemen. And then comes the mafia, which started in the 1950s, and they changed into smugglers in the 1960s. And then comes, of course, the trickster thieves and the Mumbai Don, Bhai, जो वैसे होता है ना, films like Sathya और सदाशिव अमरपुरकर साहब ने जो की थी, और अर्ध सत्या में. So, pretty much it mirrors, or I have tried to mirror the changes in the socio-economic situation and the socio-political situation. Because फिल्में क्या है, जैसे रजा साहब भी कहेंगे कि it is just a reflection of what is happening in the society, right? So that is how I have broadly done the classification. Talking about, say, politicians, see, they were not corrupt. If you look at films like your Baharon Ke Sapne or Andhi, they were not corrupt. They had strong ideologies. But in the 1980s came the corrupt politicians. और corrupt politicians की बात करते हुए एक फिल्म याद आती है, अगेन नमक हराम. बातचीत के साथ एक तो थोड़ा बहुत म्यूजिक हो जाए तो चलेगा? नहीं? एक गाना याद आया उनके फिल्म में अबाउट अ करप्ट. वो करप्ट नहीं था, लेकिन करप्ट बना दिया गया गाने से. वो झूठा है, वोट ना उसको देना. सर आप ही गा देंगे. नोट भी दे तो वोट ना उसको देना. हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा, नाम ना उसका लेना. वो झूठा है, वोट ना उसको देना. ये जो अपना लीडर है, शेर नहीं वो गीदड़ है,
छुप कर रिश्वत खाता है, रोज सिनेमा जाता है, उसका नाम ना देना। ये बख्शी साहब ने भी क्या लिखी थी? जी जी बिल्कुल जी। So that's about my classification. But I just wanted to ask you, कि did you have any role models yourself among the villains? Did you look up to some of the villains for the way they approached villainy, the way they portrayed it on screen? मुझसे ये सवाल किया गया था कि आप अपने 3 फेवरेट विलन्स का नाम बताएं। मैंने कहा मेरे 3 फेवरेट विलन्स हैं प्राण साहब और प्राण साहब। Agree. उसकी वजह है, I had the privilege of working with Mr. Pran Sahab in 21 films. I have yet to see a person with such amount of dedication, punctuality, observation. अक्सर ऐसा होता था कि अगर 9 बजे की शिफ्ट है और आप 9:05 पर सेट पर आए हैं तो प्राण साहब की गाड़ी खड़ी है। आजकल बहुत आसानियां हो गई हैं। मेरी बहुत 2 अच्छी खूबसूरत कलीग बैठी हुई हैं सामने, दिव्या दत्ता और राजेश्वरी सचदेव, and I had the privilege of working with both of them. मैं अपने शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। ना तो वैनिटी वैन होती थी, ना एसी फ्लोर्स होते थे, ना वो होते थे बाउंसर्स होते थे हमारी सुरक्षा के लिए, और ना ही मॉनिटर होता था कि हमने कोई गलती की या नहीं। ऐसी ह्यूमिड कंडीशंस में प्राण साहब फुल अपने गेटअप में, दाढ़ी, विग, मूंछ और वो हैवी उनकी जो कॉस्ट्यूम्स होती थी, 9 बजे आकर सेट पर बैठ जाते थे। डायरेक्टर कहता था प्राण साहब अभी आपका काम नहीं कहने के, मुझे देखने दीजिए। सो लाइक अ स्टूडेंट ही यूज्ड टू वॉच द अदर एक्टर्स। उसके बाद ये भी होता था कई बार कि प्राण साहब कल आप लंच के बाद आइए। आपका क्या करूंगा मैं लंच तक घर में, मैं आ जाता हूं सुबह। फिर सुबह आएंगे और पूरा अपना मेकअप गेटअप करके रेडी रहेंगे। ये उनका डेडिकेशन था। और एक लाइन जो हमेशा मुझे उनकी याद आती है, मैंने कहा प्राण साहब क्या रीजन है आपका जो इतनी लंबी आपने इनिंग्स खेली हैं and nobody has ever come even close second to you, so what is the reason? कहते हैं रजा, इसका एक ही रीजन है कि मैंने बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से किया है। तो वो प्राण साहब थे, ही इज माय रोल मॉडल। आई हैव नॉट सीन एनीबडी इन दिस फिल्म इंडस्ट्री जो अपने, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि सेट पर बैठना मुश्किल होता था, आदमी पसीने से शराबोर हो जाता था, फैंस नहीं होते थे, एसी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। वो प्राण साहब थे और बड़े उन्होंने डिफरेंट टाइप के रोल्स किए। बंगाली का भी किया उन्होंने, पंजाबी का भी किया, साउथ इंडियन के भी किए। So, he has always been my inspiration. Although I am a product of Film and Television Institute of India, वहाँ से मैंने 1971 में I passed out, लेकिन वहाँ हमने इतना नहीं सीखा जितना हमने अपने सीनियर्स के साथ सीखा है कि डेडिकेशन क्या होता है। एंड सो हम्बल, कभी उन्हें मैंने गुस्से में नहीं देखा, कभी एजिटेटेड नहीं देखा। और जो सबसे बड़ी कामयाबी है प्राण साहब की, कि
1950 के बाद माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया. You won't find a single human being, or rather, a single male जो 70 years का हो और उसका नाम प्राण हो. कुछ पुराने हैं 1945 या 1946 की पैदावार है, एक आध उनमें कोई प्राण इक्का दुक्का निकल आता है, लेकिन बाकायदा ये सर्वे किया गया था कि 1950 के बाद किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा. एंड दैट वाज अ वेरी एक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंकलाब आया एज एन एक्टर. मनोज कुमार ने उपकार में उन्हें बलंग चाचा का रोल दिया, एंड देन ही स्टार्टेड हिज सेकंड इनिंग्स एज अ कैरेक्टर एक्टर. So he has always been, I consider him as my guru. Wonderful. I completely agree with you. I'm a big admirer of Pran Sahib. Balaji, you have in your book, while you have been listing the kind of roles and the people who have enacted them, gone through the entire social change of India in a very, methodical manner, you also have peppered it with a lot of very interesting anecdotes. Yeah. Of how some of the villains found ways to stand out and not be lost in the crowd of villainy. Tell us some of those incidents. Mocambo, for example. Yeah. Mogambo was actually based on a Clark Gable film of the 1950s, so wahan se naam aaya. And then the blonde wig was there to show the foreign connect, because he comes into the category of a foreigner villain. And then he went to men's mode and picked up that garish pink and the shocking, colors just to make him. And if you look at him, he's doing everything, but nobody's scared of him. People are laughing with him. The kids love him. So it's a very strange mix of a person who's supposed to be very vicious and an enemy of the country, but somehow he has found ways of making people love him. So it's about the makeup, the characterization, how you internalize it. That's the investment that goes into it. Similarly, if you take Gabbar Singh, Amjad Khan, he struggled for the first 2 shooting sessions. He couldn't get his voice right. Log keh rahe the awaaz bahut patli hai, aise hoga nahi. He was not comfortable in those army fatigues. He couldn't chew khaini. He couldn't grind the khaini while speaking. He struggled. Then he started wearing the army fatigues, started sleeping in them, started growing a beard. So that's the investment, the hard work that Raza Sahab just spoke about. That goes into that, right? That's what, because they try to bring something, and I think it's a sum total of how they visualize. For example, even I'll take a smaller example. Govind Namdev, उन्होंने भाव झावले का जो रोल किया सत्या में, he's Satya's boss. Now you can read in the book in terms of how he took various cutouts, newspaper cutouts, बहुत सारे cutting ले लेके. For example, he says, how do Marathis speak? How to speak? They have some strange quirks, some strange body language. Sab unhone internalize kiya. So it's about how you observe, how you internalize, and then how your costume and the way of dialogue delivery, the cadence, because every Indian language has a specific cadence. You've also interviewed quite a few people, including, there's a lovely story about Danny. Yeah. Why don't you share that? Oh, there are many stories about Danny in terms of how the Kancha China name came about. So there was this young boy who would chase Danny in his car every day morning. पीछे भागता था, फिर signal से गाड़ी निकल जाती थी. And that boy used to call him Kancha, because he had that mongoloid looks. And Kancha. So फिर set में बैठे उसका नाम क्या होना चाहिए? तो नाम ढूंढ रहे. Suddenly then, अरे वो जो बच्चा मेरे पीछे भाग के आता है, Kancha China कर दो. Chinese for China, Kancha, right? So Kancha China. पता नहीं कहाँ से नाम आ जाता है वैसे. And another interesting anecdote that Danny Saab related to me, that he said, both Mr. Bachchan and I had been in the industry for 18 years. लेकिन कभी एक scene में एक साथ हम नजर नहीं आए. After 18 years of each of us having been in the industry, they started almost at the same time. The first time we came together was in Agnipath. That was the first time, and he says how it happened is, I asked the assistant director to give me the dialogues. मुझे याद करना था. फिर मैंने देखा कि मेरे पास dialogues नहीं है. I got very agitated. I started shouting at the assistant director, कहाँ मेरा dialogue? I was supposed to get it.
Then the door knocks. He opens it. Mr. Bachchan is standing there. He said, "Kya baat hai? Why are you getting angry?" He said, "No, sir, I've got a copy of the dialogues. Chalo, let's rehearse it together." And he said, "I was bowled over by the calm and composure of Mr. Bachchan." So that was the first film they came. ऐसे बहुत सारे anecdotes हैं. And I was really privileged to meet so many of them. नहीं बहुत मैं अच्छे कुछ हैं। कहना चाहूंगा, I'm sorry, हाँ जी, जरूर। क्योंकि डैनी का जिक्र हुआ है. He was 1 year senior to me in FTII. He had joined the FTII in 1968. मैंने 69 में किया join. तो एक साथ हम लोग साथ थे वहाँ. And Jaya was Danny's classmate, colleague. उनका नाम डैनी नहीं है. His name is Shring Primizo Denzongpa. Very, very difficult to pronounce. Shring Primizo Denzongpa. और डेंजोंगपा बोलते बोलते आदमी कहीं ना कहीं जो है वो स्लर कर जाता था. तो देयर वाज अ प्यून हु यूज्ड टू एड्रेस हिम एज डेंजोंग अप्पा. अप्पा भाई को बोलते हैं, डेंजोंग अप्पा. क्या हुआ कि क्योंकि डेंजोंगपा प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल था, तो जया ने डेंजोंगपा को शॉर्ट करके डैनी कर दिया. दिस नेम डैनी इज गिवन बाय जया भादरी. उसको डेंजोंगपा बड़ा खींच के बोलना पड़ता है, उसको शॉर्ट करके डैनी कर दिया. यहां से ये डैनी नाम पड़ा है इनका. और कुछ और भी उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. बहुत ही शायराना मिजाज के इंसान हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. और बाकायदा कुछ दिन उन्होंने एस.डी. बर्मन से ट्रेनिंग भी हासिल की है. बट ही वॉज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन इन द इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स. वो शक्ल से जो उनके लुक्स थे वो आम हिंदुस्तानी से मेल नहीं खाते थे. तो ही वॉज क्वाइट इनसिक्योर अबाउट हिज लुक्स. लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है. और एक बार जब आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो डैनी अगर ऋषि कपूर का बाप बना है तो भी खप रहा है. डैनी अगर अमृता सिंह का बाप बन रहा है तो भी कन्विंसिंग लग रहा है. एक बार ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले, फिर आप हर रंग में फपते हैं. सो सवाल यह है कि आप कैसा रोल कर रहे हैं, वेदर इट्स अ विलनिश रोल और इट्स अ सिंपैथेटिक रोल, आप उसे कैसा निभा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक बार क्या होता है हमारी लाइन में, आपके नाम से आपका काम होता है, आपके नाम से आपका काम होता है और फिर जिंदगी भर आप अपने नाम की खाते रहते हैं. एक बार जब एक ब्रांड नेम बन जाता है तो वही हुआ डैनी के साथ. एंड आई एडमायर हिम क्योंकि उनका अपना एक लाइफस्टाइल है. वॉट एवर ही डज, वो कोई भी फिल्म करेंगे वो बिल्कुल अपने हिसाब से करेंगे. एंड ही इज द वन एक्टर हु हैज द गट्स टू से नो. जितने रोल्स उन्होंने बहुत से उनके रिफ्यूज किए हुए रोल मेरे पास भी आए हैं. हाँ रियली. तो अभी भी दिल से वो एक तिब्बतियन पहाड़ी है. पहाड़ियों में रहना बड़ा अच्छा लगता है, पहाड़ियों को देखना बड़ा अच्छा लगता है. सो ही स्टिल अ पहाड़ी फ्रॉम हिज हार्ट. नेम फेम तो बहुत उन्हें मिला है, उसमें पैसे की अब उनको कोई हवस नहीं है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं. वॉट एवर ही डज एज पर हिज कन्वीनियंस, एज पर हिज थिंकिंग. सो मनी हैज नेवर टेम्प्टेड हिम आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल. उन्होंने छोटे छोटे रोल भी किए हैं. आपको अगर याद होगा मेरे अपने में वो विनोद खन्ना के ग्रुप में थे. ही वॉज वन ऑफ द बॉयज. छोटे छोटे रोल भी किए हैं. आदमी करता है, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में करना भी चाहिए. तो और आज भी जब भी उनसे मुलाकात होती है वही एक बहुत ही उनकी जो इन्फेक्शियस स्माइल है, एक इनोसेंट स्माइल है. ही स्टिल रिटेन्स दैट चार्म.
नहीं, और आप आपने कुछ कहा तो उससे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये पूछना चाहती हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग अ विलन्स रोल, आपको मालूम है कि आप कुछ करने वाले हैं जो गलत है, तो आपके मन में क्या है? हाउ डू यू मैनेज टू मेक अप योर माइंड टू डू दैट रॉन्ग थिंग? आई नो यू आर एन एक्टर. To be very honest, I'll tell you, I've never been comfortable doing a rape scene. Never, never, never. It's always a nightmare for me to do a rape scene. क्योंकि जो मेरी जाती जिंदगी है वो उससे बिल्कुल अलग है। मेरी जाती जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, मेरी डायरी में, मेरी डिक्शनरी में फोर्स नाम का कोई शब्द है ही नहीं। आई हेट टू फोर्स एनीबडी एंड आई हेट व्हेन समबडी फोर्सेस मी टू डू एनीथिंग। और मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रेप सीन करना मुझे बहुत बुरा लगता था। आप यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ अपॉन दैट इनोसेंट वल्नरेबल गर्ल, लेकिन करना पड़ता है भाई। मत कीजिए, डोंट एक्सेप्ट द फिल्म, मत कीजिए। पहले बोलिए कि मैं रेप सीन नहीं करूंगा, मैं विलन नहीं बनूंगा। कौन बोल रहा है आपसे? एक मेरी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल लम्हा पेश आया। ये बात शायद आप में से कोई ना जानता हो। एक फिल्म में, उसका जिक्र आपने भी किया है, एक फिल्म थी डाकू हसीना। उसमें आई प्लेड अ जमींदार हु रेप्स द गर्ल प्लेड बाय जीनत अमान। और जब रोल मुझे सुनाया गया था तो हीरोइन कोई और थी। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया और उसके बाद हीरोइन चेंज हुई, आई हैड साइंड द एग्रीमेंट, आई हैड टेकन द एडवांस अमाउंट ऑल्सो। उसके बाद जब मैं सेट पर गया तो मुझे पता चला कि आज रेप सीन करना है। And one thing I would like to bring into everybody's knowledge, that Zeenat Aman is my first cousin. My mother, Liaquat Jahan Begum, and Zeenat's father, Aman Ullah Khan, they are real brothers, sisters. First cousin. And I said, how would I do it? I said, please किसी और से करवा लीजिए, मैं कैसे करूंगा? How would I do it? कहने के पूरा दारोमदार जो है इस रेप पर ही है। इस रेप के तहत वो डाकू बनती है और वो फिर आपसे इंतकाम लेती है। तो कैसे हम किसी और से करवा सकते हैं? कैसे हम किसी और हेंचमैन से करवा सकते हैं? एंड आई वॉज इन ए डायलेमा, क्या करूं मैं? देन शी अंडरस्टूड, शी केम टू मी। मेरे घर का नाम मुन्ने मियां है। मुन्ने मियां, ये जो कुछ भी हम करें, इट्स नॉट मेक बिलीव। डोंट गेट एम्बेरेस्ड। आई एम नॉट गेटिंग एम्बेरेस्ड। तो तुम क्यों हो रहे हो मुन्ने मियां? इट्स आवर जॉब, लेट्स डू इट। एंड शी वॉज द वन हु एनकरेज्ड मी, जिससे मुझको पेप दिया। जस्ट इमेजिन रेपिंग योर फर्स्ट कजिन लाइक अ सिस्टर. But I had to do it. I had no other option. And then she petted me on my back. Munne Miyan, it was lovely. You did such a great job. You did such a good job. तो भाई ये सिनेमा है, करना पड़ता है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। जो आपका मिजाज नहीं होता है उसके विपरीत भी आपको जाना चाहता। मुझसे किसी ने थोड़ी कहा कि आप एक्टर बनिए, मैं अपने शौक से बना। तो बात वही है कि आइदर यू डोंट डू एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग यू गिव योर 100%। तो ऐसे वाकयात भी
जिंदगी में होते हैं कि कुछ आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको you have to do it. But till date, I have never been comfortable doing a rape scene in my life, and it's like a nightmare for me. No, but hats off to you and to the spirit of the true actor, that you go beyond your own compulsions, your own conscience, telling you that you should not be doing this, but do it because it's a job to be done. I mean, hats off to you. And hats off to the fact that a heart of gold can play a villain so convincingly. You know, I think that needs applause. Come on, it's the end of a long day, but let's give him a hand. I think, I salute you, sir. I salute you. Balaji, to get back to the book, you know, I know it's very, I mean, we all know that there is a blurring between black and white. We live in the area of grey nowadays, right? And you have talked about the anti-hero. I mean, you stopped talking about villains, and there's a whole chapter on the anti-hero. So tell us, what is the difference that you found between a villain and the anti-hero? विलन का मकसद गलत होता है, उसका काम गलत होता है. एंटी हीरो का मकसद अच्छा होता है, लेकिन तरीके गलत होते हैं. सो देयर इज अ जस्टिफिकेशन टू इट, राइट? आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए, मेरे अपने ग्रेजुएट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज ने निकाल दिया उनको, राइट? और टेक दीवार, जंजीर, एंड जंजीर जो है, द लीगेसी स्टिल रन्स. ही इज एन एम्पावर्ड पर्सन, कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट? और दीवार, दर दर के ठोकरे खाई है उसने. और त्रिशूल, उसकी कोई गलती नहीं थी, उस आदमी ने यू नो उसकी माँ को छोड़ के चला गया. सो देयर इज दिस रिवेंज, आइदर अ पर्सनल रिवेंज or a systemic revenge. So that's what makes it anti-hero. Now, this is not to be confused with the various shades of grey that have evolved in the last 20 years. That is different. What has evolved in the last 20 years is situational villainy, right? जब हमें गुस्सा आता है तो हम गलत काम करते हैं, जब अच्छा लगता है तो हम अच्छे काम करते हैं. That is different. So the anti-hero is different. The shades of grey is more real, more palpable, what we can connect, like with people like you and me. I don't want, just because I was with Femina, I don't want people to think I think only men can be villains. What about the women who played your villainesses? Were they more deadly than the male? Okay, I hope I won't get beaten up by the ladies, but they say, एक कहावत है ना, ये मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ. The female of the species are deadlier than the male. That's what I asked you. सास बहू के किस्से तो है ही हैं. ललिता पवार जी होती थी, राइट? और नादिरा इन व्हाट इज दैट फिल्म, दिल अपना और प्रीत पराई, तो होते ही थे. बट इमेजिन अ वुमन गोइंग ऑल द वे टू द मैरिज अल्टार, मैरिंग दैट गाय, गेटिंग इनटू अ जीप, माँ काली मंदिर के सामने गाड़ी रोक के एकदम जोर से आके उसको ठोक के उसको मार दिया. 25 साल बाद या 20 साल बाद द रीइंकार्नेशन ऑफ दैट गाय उसको भी मारने को चली थी. मतलब उसका जी नहीं भरा था. She can commit the same murder on the same person, reborn twice. She can do that. अब इसको क्या कहेंगे आप? Deadlier than the male. Deadlier than the male. हाँ, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा, ठीक है? उससे याद आया, उस फिल्म के एक बहुत मशहूर बहुत गाना है. तो we have Hargun Kaur with us, a very good singer. उसका उस फिल्म का बहुत एक फेमस गाना, उसका 2 लाइन गा देंगे आप? हाँ हाँ, एक हसीना थी. A very good evening, everyone. I feel so fortunate to be on the same panel and share stage with such accomplished artists, Raza Sahab, Balaji sir, Sathya ma'am, and Karz is the movie that sir is talking about, and dar dara dar dara dar dara da da da. एक हसीना थी. Can I have you all clapping? 2, 3, 1, 2, 3, 4. एक हसीना थी, एक दीवाना था. क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था.
you. लवली लवली लवली, सबको जगा दिया आपने. ठंड भूल गए हम. अच्छा, now I think we are. How much time do we have? Huh? No, I just wanted to ask you, Balaji, before I go back to Raza Sahab, ki tell us some of the incidents that happened when you were interviewing some of these people who have played villains on the scene, some of the actors. बहुत सी चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल के मेनन, आई मेट हिम एट रहेजा लोखंडवाला, एंड सो वी वर स्टैंडिंग बाय द पूल एंड आई वाज होल्डिंग माय लैपटॉप इन वन हैंड एंड इंटरव्यूइंग हिम. And after the interview got over, it was almost 10:15. So I said, "Sir, are you going home now?" Well, no, I'm waiting for the van to pick me up. Abhi night shoot hai mera. And he said 70% of my shoots happening during the night. KK Menon. अंधेरे में सब करना है. हाँ. So I was able to link back to a couple of his films, like Stone Man Murders and all that. So ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे किस्से हैं. And when I interviewed यशपाल शर्मा जी, it was between a take. मेकअप कर रहे थे, टेक के लिए वेट कर रहे हैं, तभी मैं बीच में जाके इंटरव्यू किया. एंड देन ही सेड, बालाजी अब एक काम कीजिए ना, अभी एक शूट होने वाला है, देयर इज अ पैन शॉट और सम पीपल ऑन द रोड, आप भी खड़े हो जाए वहां पे. सो हु नोस, आई माइट हैव मेड माय डेब्यू एज एन एक्टर दैट डे बिकॉज़ द कैमरा पैन पास मी, पता नहीं. आई डोंट नो वेयर दैट शॉट इज. मैं शॉट में फाइनल एडिटर वर्जन था कि नहीं पता नहीं. Not as a henchman, I hope. ऐसे ही मुझे चाय पीना था खड़ा होके. मैंने ठीक है, चाय तो बहुत अच्छी चीज है. चाय बहुत Henchmen also drink tea. हाँ, दे ड्रिंक टी. खून पीते हैं, चाय भी पीते हैं. राजा मुराद साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है बिफोर वी क्लोज दिस सेशन. कुछ डायलॉग्स याद हैं? डायलॉग तो याद हैं. एक देखिए, आजकल क्या है, जो डायलॉग यादगार होते हैं वो लंबे नहीं होते. तुम्हारा नाम क्या है बसंती, मेरे पास मां है, कितने आदमी थे, मोगैम्बो खुश हुआ. आधी आधी लाइंस होती हैं जिससे एक्टर्स पॉपुलर होते हैं. तो एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूं. एक फिल्म में धर्म जी को मैंने बांधा हुआ है, वो किसान हैं और मैं उनकी जमीन हड़पना चाहता हूं. क्या हुआ भाई, डरा दिया? अच्छा, 5 मिनट. तो मैंने उन्हें बांधा हुआ है, वो बेहोश हैं और मैं उनके मुंह पे पानी का छपका मारता हूं और उन्हें होश आता है. तो कहते हैं कुत्ते. वो फेवरेट उनका लफ्ज है कुत्ते. ऐसा कोई विलन नहीं है जो ये कहे कि धर्मेंद्र जी ने कभी मुझे कुत्ता ना कहा. एक भी नहीं मिलेगा आपको. एंड आई एम नॉट एन एक्सेप्शन. कुत्ते, मैं शेर हूं. कुत्ते ने ना कभी शेर का शिकार किया है और ना करेगा. मैं कहता हूं, माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते. माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, मान लिया. लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं. वंडरफुल वंडरफुल. मुझे एक और छोटे डायलॉग याद आए मुझे. I mean, Godfather, the film inspired so many movies. As soon as Godfather was made, and I've written the book, 2 films started happening. One which released within 2 years, Dharmatma, which was an exact replica. Other was Dawn, which released 5 years later, 4.5 years later. And then the legacy has continued. Sarkar, all that thing has continued throughout. So the legacy continues to bind us. उसमें एक बहुत छोटा सा डायलॉग है. अमित जी कहते हैं, डॉन को पकड़ना आपको पता होगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. नामुमकिन है. उस फिल्म का एक गाना है which was there in both the versions of the film, 1978 and 2006. ये मेरा दिल प्यार का दीवाना. जी हाँ. उस गाने का 2 लाइन हो जाए. ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है
मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना. Yeah, wow. I can hear almost everyone doing all the music bits in between. Lovely. You know, I met Chandra Bharot Saab and he gave me a complete description of where that green shirt was purchased, that check blazer जो अमित जी पहने हुए थे, वो खाई के पान बनारस वाला टाइम कि तुम पान कैसे खाए, फिर क्या हुआ, किस्सा कुछ हुआ. पढ़ लीजिए किताब में. हाँ, किताब में पढ़ने दीजिए, पूरा यहाँ मत बता दीजिए. इससे पहले कि हमें बाइज्जत तौर पे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि एक बैल बच गई है, इससे पहले कि हमें निकाल दिया जाए, हम शराफत से खुद क्यों ना चले जाएं. आप विलन हो, आपको धक्का मार के ही निकालना पड़ेगा. जी जी, पंजाबी डायलॉग, पंजाबी गाना सुना दूं एक. ये पहला गाना है जो मुझ पर पिक्चराइज हुआ था, एंड दिस वाज संग बाय द ग्रेट रफी साहब, एंड द फिल्म वाज लच्छी. तो एक बदमाश पहली बार किसी हसीन लड़की को देखता है और अपना दिल खो देता है. तो वो एक आध उसका मुखड़ा सुना देता हूं. असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया. असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया. ओ भी वेखिया ते, ओ भी वेखिया ते यार दे सबब वेखिया. असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया. असा यार दे कट रब तो नजारा नहीं जे साडे यार दा, जेड़ा वेख लेंदा यार तो ओ जिंद हारदा. गल करन दा, गल करन दा ओदा सोना टब वेखिया, टब वेखिया. ओ भी वेखिया ते, ओ भी वेखिया ते यार दे सबब वेखिया. असा यार दे नजारे विचों रब वेखिया, रब वेखिया. असा यार दे. Wow, wow, wow. I think on that note, we will call it a night. I think we should give him a standing ovation. Yes, absolutely. Oh, just मैं to इन्हें tell करेक्ट you, करना चाह रहा हूं. ये कह रहे थे इनसे कि मैंने बॉलीवुड में 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं. थोड़ा सा करेक्शन है, 50 नहीं 51 इयर्स कंप्लीट कर चुका. Thank you, Sathya, Raza ji, Balaji, Hargun. Thank you so much. Just quickly come up and make the final announcement. We're all breaking up now for cocktails, but please come right back. Bring your drinks here because there's a performance by none other than Hargun right here.